السلام علیکم دوستو، نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 9 اگست سن 2002 کو حضرت علامہ عبدالکریم ندیم صاحب جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور ضلع رحیم یار خان میں خطاب فرما رہے ہیں، جس کا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد بنت آدم ولا فخر لي بلدي يوم القيامة لواء الحمد ولا فخر لي انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ کہنے لگے روح الامی اے محجبی حق کی قسم، آفاق ہا گردید ام مہر بتا ورزید ام، بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری، حق نے کی ہے عطا سب سروروں کی سروری، آپ پر ہے ختم سب پیغمبروں کی پیغمبری، تو ازبری چابک تری بزبر کے گل نازک تری، ہر چند وصفت میں کنم حق کا عجائب دلبری، شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ، اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ، وہ تو بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ اللہ لائق سب تعظیم و تکریم علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز سن رہی ہیں تو میری اسلامی مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ہمارے ضلع رحیم یار خان کی معروف ترین دینی درسگاہ جامعہ مدینۃ العلوم فیروزہ، جو ہمارے مختوم شیخ حضرت اقدس فخر السادات سید حامد علی شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ کی ایک عظیم علمی تاریخی یادگار ہے، یہ عظیم الشان سالانہ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے یہ اجتماع حضرت شاہ جی کی زندگی سے ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ میں بھی ہر سال کئی سالوں سے مسلسل حاضری دیتا ہوں۔ برادر محترم سید ناصر شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمر میں صحت میں برکت دے، اور اللہ ان سے والد کے جانشین ہونے کی حیثیت سے اس درسگاہ کی خدمت کا خوب کام لے۔ ہر سال جب بھی آتا ہوں، چونکہ موضوع میلاد النبی ہوتا ہے، ولادت رسول ہوتا ہے، تو میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ موضوع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے، موضوع کچھ ہو اور عنوان پہ گفتگو کرنے والا اور آدمی کسی اور موضوع پر چلا جائے تو لوگوں کا ذہن یقیناً یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک موضوع پہ 50 آدمی جب تقریر کریں تو تقریر کرنے والے کو سوچنا پڑتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی سارے اسی موضوع کو نبھا رہے ہیں، میں بھی اسی پر گفتگو کر رہا ہوں، تو باتیں تو وہی بار بار دہرائی جائیں گی، لیکن بقول کسی کے کہ اے سیف
अंदाज बयां बात बदल देता है, वरना कोई बात नई बात नहीं। बातें हुई हैं जो पिछले साल भी आपने सुनी, उससे पहले साल भी सुनी, उससे पहले साल भी सुनी। आज भी सुबह से आप अपने उलमा मुबल्लिगीन मुकर्रिरीन से सुनते चले आ रहे हैं। कुरान मजीद के आखिरी पारे की एक सूरत जिसको सूरह फील कहते हैं, यह मैंने आपके सामने तिलावत की है मीलादुन नबी के हवाले से। जाहिरी तौर पर आप ये सोचेंगे कि नबी की विलादत का इस सूरत से क्या ताल्लुक है। इसका जाहिरी कोई जोड़ समझ में नहीं आता, कोई रब्त और ताल्लुक नहीं समझ आता। आप अगर थोड़ी सी तवज्जो करें तो मैं अपना मौक़िफ़ और मसरक भी आपको समझाऊंगा और इसका रब्त भी आपको समझा सकता हूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले और ऐलान नबुव्वत के बाद कुछ वाक़यात ऐसे जो खर्क आदत खिलाफ आदत दुनिया में जाहिर हुए, और वो आदाब वो तमाम तर वाक़यात हुजूर की नबुव्वत की पेशीन गोई थी, नबुव्वत की निशानियां थी। जो वाक़यात ऐलान नबुव्वत से पहले सादिर होते रहे, मसलन आका की विलादत के वक्त, विलादत से पहले, विलादत के बाद, ऐलान नबुव्वत से पहले, इन तमाम वाक़यात को कहते हैं इरहास नबुव्वत। क्या कहते हैं भाई? ये लफ्ज याद कर लो, शायद आपके लिए नया लफ्ज हो। जो अरबी पढ़ते हैं या तारीख की किताबें पढ़े हुए उनके लिए मुश्किल नहीं है। क्या कहते हैं? जो वाक़यात ऐलान नबुव्वत से पहले जाहिर हो उनको क्या कहते हैं? इरहास नबुव्वत। सारे कहें इरहास नबुव्वत। और जो वाक़यात नबी खर्क आदत खिलाफ वाक़या ऐलान नबुव्वत के बाद जाहिर करें उनको कहते हैं मोजज़ात नबुव्वत। अल्लाह के नबी के मोजज़ात आप हजरात के सामने बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर ऐलान नबुव्वत के बाद काफिरों ने कहा आप चांद को टुकड़े कर दें, हम आपको नबी मान लेंगे। आपने इशारा किया तो चांद टुकड़े हो गया। अबू जहल ने कहा मेरे हाथ में क्या है, आप बता सकते हैं? आपने फरमाया मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, या तेरे हाथ की चीज बताए कि मैं कौन हूं। उसने कहा यह और अजीब बात है। अल्लाह के नबी ने उसकी उंगली की तरफ इशारा किया। कंकरियां हाथ में कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने जल्दी से नीचे फेंकी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनको उठाया। वो सिद्दीक़ के हाथ में कलमा पढ़ रही है, फारूक के हाथ में आती है, उमर के हाथ में कलमा पढ़ती है, उस्मान के हाथ में कलमा पढ़ती है, हैदर के हाथ में कलमा पढ़ती है, फिर पैगंबर के हाथ में आती है, हुजूर के हाथ में कलमा पढ़ रही है। अब ये पत्थरों का कलमा पढ़ना ये नबूवत का मोजज़ा है। सारे बोलो क्या है? बात समझ आए तो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मोजज़ा। सैकड़ों वाक़यात और मोजज़ात हैं। खसाइसुल कुबरा अरबी में एक किताब है, अल्लामा सयूती ने 2 जिल्दों में लिखी है। उसमें 3,500 वाक़यात नकल किए हैं जो अल्लाह के नबी की नबुव्वत के शहादत के तौर पर खर्क आदत के खिलाफ वाक़यात, लोगों ने अनमोल हिकायात वाक़यात देखी जो दुनिया के तसव्वुर और तख़य्युल में नहीं थी, और वो 3,500 वाक़यात को लिखा है कि ये सारी हुजूर की नबुव्वत के मोइज़े थे। ऐलान नबुव्वत के बाद हजारों वाक़यात हैं। ये मोइज़ा है कि काबे की चौखट को आपने पकड़कर दुआ मांगी, उमर कलमा पढ़कर हुजूर के कदमों में आ गए। ये मोइज़ा है कि अल्लाह के महबूब काबतुल्लाह को दुआ पकड़कर दुआ हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, आसमान पे बादल जमा होते हैं, चेहरे पे फेरते हैं, मींह बरसना शुरू हो जाता है। ये नबूवत का मोइज़ा है। हुजूर के हाथ उठते हैं, अबू हुरैरा की अम्मा कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करती है। ये सब वाक़यात ऐलान नबूवत के बाद के हैं। सारे बोलो ऐलान नबूवत के। नबूवत के ऐलान से पहले जब अभी महबूब दुनिया में नहीं आए थे, कुछ वाक़यात उस वक्त जाहिर हुए, कुछ वाक़यात विलादत के वक्त जाहिर हुए, कुछ वाक़यात विलादत के बाद ऐलान नबूवत से पहले जाहिर हुए। ये तमाम वाक़यात इरहास नबूवत हैं। और ये सिर्फ हुजूर के लिए नहीं, महबूब से पहले भी जितने नबी आए हैं वो नबियों की जिंदगी में भी ऐसे वाक़यात जाहिर होते थे। मिसाल के तौर पर बतौर नमूना आपको मिसाल देता हूं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, 3 दिन के थे। 3 दिन का बच्चा क्या चीज होता है? मां की गोद में है। इल्जाम लगाया गया कि माज़अल्लाह ये ईसा अलैहिस्सलाम मरियम का बेटा, मरियम की तो का शौहर ही कोई नहीं, ये कहां से आ गया है? मां पे गलत इल्जाम लग रहा है। अब मां से लोग पूछते हैं ये कहां से लाई है? कुरान कहता है कि वो बच्चे की तरफ इशारा करके कहती थी अशारत इलैहि, इसके तरफ के इससे पूछो, मुझसे ना पूछो। अब वो काफिर कहते थे ये 3 दिन का बच्चा ये क्या बोलेगा? मगर जब उस बच्चे से कहा चलो हम इससे पूछते हैं ये बच्चा क्या बोलेगा, तू कहां से आया है,
तो 3 दिन का बच्चा मां की गोद में कहता है इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता करनी है, किताब अता की है और मुझे नबी और रसूल बना के भेजा है। ये 3 दिन का बच्चा मां की गोद में बोल रहा है। ये मोर्चा नहीं, ये ऐलान नबूवत से पहले का वाकया है। इसको इरहास नबूवत कहते हैं कि जो बच्चा 3 दिन के आलम में अम्मा की झोली में इतने अच्छे जुमले कहता है, वह नबूवत के मिलने के बाद कितना अच्छा काम करेगा। जैसे कि ईसा मां की गोद में बोले हैं, ऐसे हमारे आका की विलादत के वक्त भी रूनमा हुआ वाकया। अम्मा आमना कहती है जब हुजूर की विलादत पर शहादत हुई, मैं हैरत में डूब गई कि बच्चा मेरे हाथों में आने की बजाय ऐसे लगता है जैसे उसने सर सज्जे में डाल दिया हो। गौर से देखा तो लब हिल रहे हैं, कान लगा के देखा तो जुमले हैं जबान पर, अल्लाहुम्मा इग़फिर li उम्मती, अल्लाहुम्मा हदी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के फैसले कर, ए अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत अता कर। बोले ईसा भी है, बोले महबूब भी है, गवाही उसने भी नबूवत की दी है, इसने भी दी है, मगर फर्क समझिए, वो अम्मा की गोद में पहले आए हैं, बोले बाप पे हैं, मेरे नबी माँ की गोद में बाप पे गए हैं, बोले पहले हैं। जब ईसा बोले हैं उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया है, उन्हें नबूवत की फिक्र है। जब मेरे महबूब बोले हैं नबूवत का तज़किरा नहीं किया, अपनी उम्मत की फिक्र की है। इरहास नबूवत। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, तवज्जो रहे मेरी तरफ, जो चीजें समझाना चाहता हूं। मां ने संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। कुरान कहता है वअवहयना इला उम्मी मूसा, हमने उम्मे मूसा को वही की कि घबरा नहीं, इसको दरिया में डाल दे, हम तेरे ही दूध उसको पिलाएंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान ने कहा हर्रमना अलैहिल मराज़िया, हमने उस पर हराम कर दिया कि वो किसी औरत का दूध नहीं पिएगा। अब जो बच्चा नौमौलूद हो, उसे दरिया में डाल दिया गया हो, वो बहता हुआ सल्तनत बादशाह वक्त की सल्तनत में पहुंचा हो, उसके दरबार से उसको निकाला गया हो, औरतें इकट्ठी हो गई हो। मैं वो सारा किस्सा नहीं सुनाना चाहता। हर दाइया पकड़ के बच्चे को सीने से लगाती है कि इसको दूध पिलाऊं, लेकिन बच्चा मुंह यूं कर देता है, तू दूध ही नहीं पीता। अब ये नबी का मोर्चा नहीं, चूंकि इसने नबी बनना था, अल्लाह ने इसकी अम्मा से वादा कर लिया था। अब जितनी दाइया आई है किसी का दूध नहीं पिया, और जब अपनी अम्मा आई है जिसका दूध पीने का अल्लाह ने नबी से वादा लिया था, 3 दिन के चार नौमौलूद बच्चे को कहा है नहीं पीना दूध, और जब अपनी मां ने उठाया है तो फौरन बच्चा सीने से लग जाता है और दूध पीना शुरू कर देता है। यह ऐलान नबूवत से पहले मूसा की नबूवत की दलील है। नबूवत का ऐलान बाद में है, बचपन से नबूवत के आसार रूनुमा होते हैं, इनको इरहास नबूवत कहते हैं। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, और यही हाल अल्लाह के महबूब रहमत कायनात के साथ हुआ। तवज्जो से बात को समझना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा हलीमा 300 दाइयां, मुझसे पहले उलमा आपको ये दाइयों के किस्से सुना रहे थे, मैं किस्से नहीं सुनाना चाहता। हर दाई उठाती थी कि दूध पिलाऊं, चाहती थी करीब जाऊं, लेकिन वो तो उठा लेती थी। यहां तकदीर का फैसला यह था कि मेरे महबूब को कोई उठाए ना, और जिसका दूध पिलाना था उसने उठाया भी है, सीने से लगाया भी है। और जब सीने से लगाया है तो फिर जहां पर एक इरहास नबूवत का वाकया ये पेश आया कि पिस्तान के 2 हिस्सों में से एक तरफ सोतीला भाई दूध पीता है, दूसरी तरफ महबूब दूध पीते हैं। जो हिस्सा पैगंबर का है वो दूसरी तरफ आका मुंह नहीं लगाते, बल्कि मां भूल के इधर से दे दे तो फौरन बच्चा मुंह मोड़ लेता है कि अम्मी अपना हक इस्तेमाल करता हूं, किसी का हक नहीं खाना चाहता। यह ऐलान नबूवत की अलामत थी। नबी आए, बने इजहार बाद में हुआ है, उसकी निशानी पहले से शुरू है। और यह भी याद रखिए, अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है कि हुजूर को नबूवत 40 साल बाद नहीं मिली। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन बल आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं तो अल्लाह के यहां उस वक्त भी नबी था जब आदम का गाड़ा बन रहा था। यानी मुझे तो अताए नबूवत, इल्काए नबूवत, नूरे नबूवत अता हुआ है। अल्लाह ने नबूवत के लिए जो मेरी रूह का इंतखाब किया है, वो पूरी कायनात में कोई चीज नहीं बनी थी, सबसे पहले मुझ मोहम्मद को बना दिया गया था। इसी तरीके से छोटे से बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, मां के सीने का दूध खुश्क हो गया है
पानी खत्म हो गया है, खजूरें खत्म हो गई हैं, सफा और मरवा की पहाड़ियों में मां दौड़ती है, बच्चे पर नजर डाली हुई है कि बच्चे का क्या हाल बनता है। बच्चा एरिया रगड़ रहा है, जहां पांव जोर से रगड़ता है वहां से जमजम का कुआं निकलता है। क्या निकलता है? जमजम का। ये पानी किस नबी का मौजज़ा है? सारे बोलो। फिर आपने वही बात कह दी जो मैं भी आपको समझा रहा हूं। मौजज़ा होता है ऐलान नबूवत के बाद। ये तो 6 महीने का बच्चा है, इसका मौजज़ा कैसे हो गया? ना हाजरा का मौजज़ा है इसलिए कि हाजरा नबी नहीं, औरत है। न इस्माइल का मौजज़ा है, ये इरहासे नबूवत है। नबी बनने से पहले एक वाकया पेश आया जो इसकी नबूवत की अलामत थी कि आज ये इतना अजमत वाला है, नबी बनने के बाद कितने अजमत वाले होंगे। और यही मौजज़ा हुजूर के हाथों सादिर हुआ। रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमजम के कुएं पर आए हैं, आपने पानी लिया है, नोश फरमाने के बाद फिर उसी जमजम के कुएं में पानी डालकर फरमाया, मेरे उम्मतियों अब ये क़यामत तक कुआं खुश्क नहीं होगा। हालांकि हजरत इस्माइल के जाने के बाद वो कुआं बंद हो गया था, खुश्क हो गया था। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उसकी खुदवाई कराई थी। अब हुजूर ने अपना जूठा मुबारक, लाग मुबारक वाला पानी, अपना बचा हुआ पानी आपने उसके अंदर डालकर फरमाया, अब क़यामत तक जितनी उम्मत इस पानी को पिएगी सब रसूलुल्लाह का जूठा पिएगी। आज जो जमजम पीते हो ये नबी का बचा हुआ पानी है। यही वजह है कि पूरी कायनात सैराब होती है मगर उस पानी में कमी नहीं आती, इसलिए कि नबी जितनी बड़ी उम्मत का नबी है ये पानी भी उतनी बड़ी उम्मत को मिलना है। इरहासे नबूवत। ऐसे ही आका की विलादत के वक्त नबूवत के अनोखे वाकयात रूनुमा हुए। अब ये वाकयात क्यों होते हैं, मेरी तरफ तवज्जो करना, एक बात समझाना चाहता हूं। रात जाती है, दिन आता है। रात, सारे बोलो ना, और दिन। रात को अंधेरा और दिन को रोशनी किसकी वजह से? वो बोले ऊंची बात से। सूरज की वजह से दिन रोशन होता है, सूरज चला जाए तो रात, बोलो तो सही ना, अंधेरी होती है। हुजूर है नबूवत के सूरज, जब तक हुजूर नहीं आए थे रात अंधेरी थी। रात अंधेरी, और जब रात हो अंधेरा हो तो रात को चोर चोरी करते हैं, रात को डाकू डाका मारते हैं, जानी जिना करते हैं, शराबी शराब पीते हैं, हर किस्म की बुराई होती है, मौसम सारी गंदगी होती है। लेकिन जिस वक्त, तवज्जो से मेरी बात को समझना, रात जाने लगती है, सूरज अभी आता नहीं, तवज्जो से समझना, सूरज अभी जाहिर नहीं हुआ, रात जाने लगी है, तो रात के जाने और सूरज के आने से पहले दरम्यान में कुछ वाकयात रूनुमा होते हैं जो इसकी निशानी होती है कि अब इन वाकयात के बाद रात नहीं सूरज आएगा, अंधेरा नहीं सवेरा होगा, रात नहीं दिन होगा। रात थी चोरी थी, रात थी शराब पी जा रही थी, रात थी जिना था, रात थी डाके डाले जा रहे थे, रात थी आसमान पे सितारे रोशन थे। अभी सूरज आया नहीं, आने से पहले सितारे जा रहे, आने से पहले सितारे, सारे बोलो सितारे। सूरज अभी नहीं निकला, सितारे पहले जा रहे हैं। अभी हुजूर की नबूवत का सूरज नहीं जाहिर हुआ था, 500 साल पहले ईसा चले गए, सितारे चले गए, और एक सितारा तुलू होता है रात के आखिरी हिस्से में जो फजर का सितारा कहलाता है। उसके गुरूब होने के बाद दुनिया को बता दिया जाता है कि अब सूरज तुरूरमा होने वाला है। वो जो फजर के करीब का सितारा था, उस सितारे का नाम ईसा अलैहिस्सलाम था। वो सितारा तस्लीम की थी, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा, और मैं इसलिए आया हूं। जैसे वो सितारा तुलू होता है, लोग कहते हैं रात गुजर चुकी है, ये फजर का सितारा है, इसके बाद सुबह हो जाएगी, और मियां उस सितारे को देखकर सवेरे का यकीन होता है, ईसा को आते देखकर मोहम्मद की नबूवत का यकीन हो गया। जैसे वो सितारा सवेरे की पेशीन गोई देता है, ईसा ने महबूब की आमद की पेशीन गोई दी। सूरज बाद में आता है, बात को समझना जरा। रात के जाने सूरज के निकलने के दरमियान अजीब और गरीब वाकया, रोशनी शुरू हो गई, सवेरा शुरू हो गया। अभी सूरज नहीं निकला लेकिन अंधेरा खत्म और सवेरा
बोलो यार, सूरज नहीं निकला, अंधेरा खत्म और सवेरा शुरू। अभी आफ्ताब नबुव्वत मोहम्मद का तुलू नहीं हुआ था, रात चूंकि जा रही थी, सवेरा सूरज आ रहा था, तो आने से पहले ही सवेरा शुरू हो गया कि हजरत आमना ने भी ख्वाब देख लिया, अब्दुल मुत्तलिब ने भी ख्वाब देख लिया, अब्दुल्ला ने भी ख्वाब देख लिया। अब्दुल मुत्तलिब भी कहते हैं कि मैं देखता हूं कि काबतुल्लाह में पड़े हुए बुत उधर मुंह गिर रहे हैं। मैं देखता हूं कि हातिफ गैब आवाज दे के कहता है इस काबे को पाक करने वाला नबी दुनिया में आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला भी वाकयात देखते हैं। सैयदा आमना तो कहती है कि जिस वक्त विलादत हुई इतनी बड़ी रोशनी उठी है जिससे मुझे शाम के महल्लात नजर आए हैं। इशारा इस तरफ था कि अब हुकूमत शाम नहीं रहेगी, अब क़यामत तक मोहम्मद के इस्लाम की हुकूमत रह जाएगी। सूरज बाद में तुलू, रात जाती है तो दरमियान में कुछ वाकयात आते हैं। उन वाकयात में ये वाकया भी होता है, लोग उठ के बेदार हो गए। अभी सूरज आया नहीं, लोग क्या हो गए? जाग गए ना भाई। सूरज के निकलने से पहले लोग जागना शुरू हो जाते हैं। इंतजार इस बात का होता है सूरज निकले तो दुकान पे जाएं, सूरज निकले तो काम काज करें, सूरज निकले तो पढ़ाई शुरू करें, सूरज निकले तो फला काम करें, लेकिन पहले से तैयारी शुरू है। अभी नबुव्वत का सूरज रोशन होने वाला था और उसके आने से पहले शाह तुब्बा इंतजार कर रहा है, वह दुनिया बेदार हो रही है। हसन बिन साबित इंतजार कर रहे हैं, दुनिया बेदार हो रही है। सलमान फारसी इंतजार कर रहे हैं, दुनिया बेदार हो रही है। राहिब इंतजार कर रहे हैं, दुनिया बेदार हो रही है। तौरात इंजील पढ़ने वाले यहूदी ईसाई पोप और पादरी और उनके मौलवी वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे रात जाते ही दिन सूरज निकलने से पहले लोग जागना शुरू हो जाते हैं, सूरज का इंतजार कर रहे होते हैं। सूरज निकले तो अपना काम शुरू करे, ये दुनिया के लोग इंतजार कर रहे थे। समझने की नीयत से आया करो कि कुछ पल्ले डाल के जाना है। हसन बिन साबित की उम्र 120 साल है। 18 सहाबा ऐसे गुजरे हैं जिनकी उम्र 120 साल है। उनमें से एक सहाबी सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इन्होंने जब कलमा पढ़ा था उस वक्त इनकी उम्र 60 साल थी। कितनी थी? सारे बोलो 60 साल। तो जमाने जिहालत 60 साल और जमाने इस्लाम भी कुल कितनी हुई? 120 साल। हजरत हसन कहते हैं मेरी उम्र 7 साल थी। कितनी? 7 नहीं, 7 साल थी। मैं बच्चा था। खड़े होकर कहता है मदीने के लोगों इधर आओ, तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। सब लोगों को वो जमा करता है और जमा करने के बाद कहता है कि आज की रात मेरे इल्म नुजूम के हवाले से आसमान नुजूम पर एक सितारा रोशन हुआ है जो इस बात की अलामत है कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आ रहा है। और वो बच्चा आए तकबीर खत्मे नबूवत अल्लामा अब्दुल नदीम साहब, अल्लामा अब्दुल करीम नदीम साहब, फखरे उलमाए देवबंद, हजरत सैयदना हसन कहते मैं हैरत में था। मक्के से मदीने आए तो हुजूर की उम्र 53 साल थी। कितनी थी? 50 और 3 53 साल थी। 53 साल में 7 साल और मिलाओ तो कितने हो गए? फरमाया जो ही हुजूर मदीने आए तो मुझे बताने वालों ने आकर बताया मुबारक हो जिस नबी का तज़किरा उस राहिब ने किया था वो हिजरत करके मदीने में आ चुका है। कल गए हम उसी वक्त मैं जाता हूं, अल्लाह के नबी का चेहरा पढ़ता हूं, रसूलुल्लाह पे अशार कहता हूं और अल्लाह के नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता हूं। मैं बता रहा हूं कि सूरज निकलने से पहले, रात के जाने के बाद वो जो दरमियान का हिस्सा होता है वो सूरज की आमद की पेशीन गोई होती है कि अब सूरज आने वाला है, इसके आने का ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। लेकिन सूरज के आने से पहले वाकयात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे महबूब की आमद से पहले पैगंबर की नबूवत के वाकयात शुरू हुए जिनको इरहास नबूवत कहा जाता है और वो इस कदर तफसील के साथ किताबों में है कि उनको शुमार नहीं किया जा सकता। तमाम सीरत की किताबों में, तमाम तारीख की किताबों में इस अंदाज से सहाबा इकराम ने देखे हैं, हत्ता के यहूद व नसारा ने देखे हैं, उनके उलमा ने देखे हैं, कुरैशी ने देखे हैं, अहले मक्का ने देखे हैं। जनाब अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि एक औरत मुझे आके कहती है अब्दुल्ला मैं तेरे साथ निकाह करना चाहती हूं। मैंने कहा शर्मीले निगाह से सर नीचे करके कहा 18 साल की उम्र थी उस वक्त, कहा मैं अपने अब्बे की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। चले गए। कुछ मुद्दत के बाद वो औरत फिर मिली। उसने कहा अब्दुल्ला मैं तौरात इंजील ज़बूर की आलमा हूं,
सारी किताबें मेरे सीने में हैं, तूने मुझे आवारी और बजारी औरत समझा था। याद रख, मैंने एक चमकता हुआ नूर तेरी पेशानी में देखा था, जो नस्लन बाद नस्लन तुम्हारे खानदान में मुंतकिल हो रहा था। ये नूर अब्दुल मुत्तलिब के सीने में भी था, ये नूर हाशिम के सीने में भी था, अब उसके पेशानी में भी था, ये अब्दुल मनाफ की पेशानी में भी था। हमारे बड़े बताते चले आ रहे हैं। मेरी तमन्ना थी मैं एक नबी की मां बनूं, लेकिन आज वो नूर तेरे पेशानी से गायब हो चुका है, वो कशिश और जाज़बियत खत्म हो चुकी है। अब अगर तू मुझे कहेगा भी सही, मैं तुझसे निकाह नहीं करूंगी, इसलिए कि नूर कहीं मुंतकिल हो चुका है। उस वक्त अब्दुल्ला निकाह कर चुके थे, हुजूर अपने अम्मा आमना के पेट में आ चुके थे। ये कहने के बाद वो औरत कहती है, काश मेरी जिंदगी तो गुजर गई, लेकिन मेरे दिल की हसरत न पूरी हो सकी कि मैं आखिरी नबी की अम्मा न कहला सकी। ये इरास नबूवत, ऐलान नबूवत से पहले नबूवत के वाकयात। मैं इन तमाम वाकयात से एक मफहूम आपको और ये समझाना चाहता हूं। ऐलान नबूवत के बाद नबी फरीजा नबूवत अदा करता है। ऐलान नबूवत से पहले जो वाकयात उसकी नबूवत की निशानी और अलामत हुआ करते हैं। एक रिवायत में आता है जिस साल हुजूर की विलादत बासाबत हुई है, उस साल जितनी औरतों को दुनिया में अमल था, जितनी औरतों को, किसी औरत को बच्ची नहीं पैदा हुई। जितनी औरतों को हमल था अल्लाह ने सबको बच्ची अता की। क्या अता किए? बोलो क्यों? अरब में जिहालत का रिवाज था कि बच्चे पैदा हो, बच्ची पैदा होती तो लोग उसको जिंदा दफन करते थे। इधर आका रहमतुल्लिल आलमीन बन रहे थे और नबी की रहमत गामा और कामिला की अजमत के खिलाफ था कि ये रहमत वाला नबी भी आए और किसी की बेटी को जिंदा दरगोर किया जाए। ये बेटी के तकद्दुस के खिलाफ था। अब दुनिया में नबी ने ऐलान नबूवत पैदाइश के बाद तो करना नहीं था, इसका तो किसी को पता नहीं था। अब अल्लाह ने अपनी तकदीर से उस नबी की नबूवत को दुनिया में रोशन करना था, इसलिए रब ने सब औरतों को हमल में बच्चे दिए कि किसी के घर बच्ची पैदा नहीं होगी, दफन नहीं होगी। जब दफन नहीं होगी तो मोहम्मद की नबूवत की निशानी बन जाएगी। आका की विलादत हुई, 200 कुंवारी नौजवान साहिब इल्म, तौरात अंजीर की आलिमा औरतें चीखे मार के जा बहक हो गई, मौत हो गई। ये तमाम वो औरतें थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले, आमद से पहले इस बात की मुतमन्नी थी कि हम आखिरी नबी की मां बने, लेकिन बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई, वो अमानत आमना के हिस्से में आई। ये सारी औरतें महरूम हो गई, इसलिए वो दम तोड़ के मर गई। ये सादत सिर्फ आमना को मिली। इरहास नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सहाबा, हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम नदीम साहब, नारे तकबीर। अब ये सूरज तुलू होने से पहले, रात के जाने के बाद, रात खत्म होती है, सूरज निकलता है, इसके दरमियान का वक्त उसको फजर कहते हैं। क्या कहते हैं? और फजर का माना है फटना। फजर का माना क्या है? सारे बोलो, फटना। और फटने में कई चीजें फटती हैं, खुलती हैं, निकलती, हर चीज उसमें फटती है। रात फट जाती है, दिन हो जाता है। सोए हुए नींद वाले आंखें फटती है, खुल जाती है। फटना, जानवर परिंदे परिंदे सब शुक्र खामोश पड़े होते हैं, दिन होता है तो सब निकलते हैं, फटते हैं। ऐसे ही ये फजर आई जो हुजूर की नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से पहले, लेकिन ईसा के जाने के बाद दरमियान में वो वक्त आया जिसमें दुनिया फटी। काबे में पड़े हुए बुत ऊंधे मुंह गिरे, फटे। किसरा के टुकड़े गिरे, ये फजर थी कि वो फट रहे थे। शाम के महल्लात नजर आए, फजर थी कि फट रहे थे। महबूब की विलादत बासादत के वक्त ईरान का आतशकदा आग 1000 साल से बुझ चल रही थी, यकसर बुझ गई। वो फजर थी जो इस रात को फाट के उसे बुझा रही थी। ये हुजूर की नबूवत का सवेरा था। अब जब हुजूर आए तो नबूवत के सूरज बनकर, सारे बोलो क्या बनकर? ऊंची बात से, सूरज बनकर। आका से पहले जितने नबी थे वो नबूवत के सितारे थे और हमारे आका नबूवत के सूरज थे।
کیا جو نبوت کے یہ نبوت کا سورج کا لفظ میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ حضور کو سورج سے تشبیہ دینا بھی توہین رسالت ہے۔ میری بات کو سمجھنا، اللہ کے نبی کا یہ جو ظاہری حسن و جمال ہے، آقا کی آنکھوں کا تذکرہ کرنا، زبان مبارک کا تذکرہ کرنا، محبوب کے ہاتھوں کا تذکرہ کرنا، نبوت کے سینے کا تذکرہ کرنا، نبوت کے رخساروں کا تذکرہ کرنا، پیغمبر کے جسم اطہر کا تذکرہ کرنا، محبوب کی خوشبو کا تذکرہ کرنا، آقا کے پسینے کا تذکرہ کرنا، جس پر ہمارے علماء حضور کے خد و خال کو، حسن و جمال کو، کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنی کتاب تذکرہ محبوب کبریا میں یہ ساری باتیں تفصیل سے میں نے کھول کر لکھی ہے اور ایک ایک ادا اس میں نقل کی ہے، اور اپنی طرف سے نہیں، صحابہ کرام کی زبان سے ان واقعات کو نقل کیا ہے۔ یہ جتنا بھی حضور کا حسن بیان ہو، بات کو سمجھنا، یہ جتنا بھی آقا کا حسن بیان ہو، یہ حسن نبوت صحابہ کا ادراک تو ہے، صحابہ کا تصور تو ہے، صحابہ کا تخیل تو ہے کہ صدیق جتنا نبی کو سمجھ سکا اتنا صدیق نے بتایا، جتنا فاروق سمجھ سکے اتنا فاروق نے بتایا، جتنا عثمان علی سمجھ سکے اتنا عثمان علی نے بتایا، لیکن نبی کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں سمجھو میری بات ذرا غور سے۔ حسن نبوت کی جو حقیقت ہے کہ اللہ نے کتنا حسین بنایا، اس کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکا، یا بنانے والا جانے یا بننے والا جانے، یا اللہ جانتے ہیں یا رسول اللہ جانتے ہیں۔ صدیق نے جتنا سمجھا ہے اتنا بتایا، فاروق نے جتنا حسن سمجھا ہے اتنا بتایا ہے، حسان نے جتنا حسن سمجھا ہے اتنا بتایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کہتا ہے کانہ قطعۃ من القمر، حضور ایک بات ہے پیشانی ایسے لگتی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ اب چاند کی کیا اوقات ہے میرے نبی کا مقابلہ کرے؟ اب چاند صحابی اپنی حیثیت سے تو تشبیہ دے رہا ہے کہ بھئی ہم چاند کو خوبصورت کہتے ہیں، اس لیے میں اتنا بتا سکتا ہوں، لیکن نبی کے حسن کی انتہا نہیں بتا سکتا۔ ایک صحابی کہتا ہے کان الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے سورج حضور کی پیشانی میں چل رہا ہو۔ اب یہ صحابی سورج تک تو پہنچ سکا ہے، نبی کے حسن کی انتہا تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے اس نے سورج سے تو تشبیہ دی ہے جہاں تک اس کی پہنچ تھی، جس کو یہ سمجھ سکتا تھا اگر سورج سے 12 کوئی اور چیز ہوتی یا اس سے تشبیہ دے دیتا، جہاں تک یہ سمجھ سکا اس نے نبی کو سمجھا۔ نبی کے حسن کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، حضور کے حسن کی حقیقت کو کوئی کائنات کو نہیں سمجھ سکا، صرف اللہ ہی سمجھے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اور اسی کو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ پہچان سکا تجھ کو کوئی بجز ستار۔ اللہ کے بغیر تیرے حسن کے کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب نے تجھے بشریت کے حسن، تیرے حسن کو بشریت کے پردے اور سانچے میں ایسا ڈھالا ہے کہ لوگ دیکھ کر جو سمجھ سکتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، اور جن کی سمجھ جہاں تک پہنچتی ہے اتنا کہتے ہیں۔ حقیقت میں کتنے ہیں؟ فرمایا نہ پہچان سکا تجھ کو کوئی بجز ستار، اللہ ہی بہتر جانتا ہے محمد کتنے حسین۔ ایک بات اس پر اور بتاتا ہوں آپ کو بڑی عجیب، نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، صحابہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ مشہور ہے کہ سب سے زیادہ حسین نبی تھے۔ حسن کس نبی کا مشہور ہے بھائی؟ سارے بولو حسن یوسف، لیکن فرق کو سمجھو، علماء نے لکھا ہے کہ یوسف کا حسن صبیح تھا، حسن صبیح، صاد با ہاں یا صبیح، حسن صبیح تھا، اور میرے محمد کا حسن ملیح تھا، ملاحت۔ اب یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ علماء بیٹھے ہیں یا جو دینی مدارس کے طالب علم عربی سمجھتے ہو ان کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، کوشش آپ کر لیں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ صباحت کا معنی ہے مٹھاس، اور ملاحت ملحن اس کا معنی ہے نمکینی۔ یوسف کے حسن میں صباحت مٹھاس ہے اور میرے محبوب کے حسن میں نمکینی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرنا ذرا۔ اور صباحت میں سفیدی غالب ہوتی ہے، گورا پن، اور ملاحت کہتے ہیں جس سفیدی میں سرخی غالب ہو۔ آدمی سفید گورا ہو لیکن اس میں خون اتنا ہو کہ اس کے چہرے سے ایسے لگے جیسے خون باہر نکلتا، اس کو ملاحت کہتے ہیں۔
मलाहत में सफेदी में सुर्खी गालिब, सबाहत में सफेदी गालिब। सबाहत मिठास को कहते हैं, मलाहत नमकीनी को कहते हैं। मीठी चीज खाने को जी तो चाहता है, लेकिन आदमी उकता जल्दी जाता है। और नमकीन चीज को जब खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता रहे, वो रचती और पचती चली जाती है। जितनी खाए उतनी तस्कीन मिलती चली जाती है। हुस्न यूसुफ देखने को जी तो चाहने वालों का चाहा, लेकिन वो देख के पचा ना सकी। मगर हुस्न मोहम्मद की राजा ये है कि जो देखता चला जाता वो करीब होता चला जाता, दीवाना बनता चला जाता। फिर सबाहत में मिठास है, मलाहत में नमकीनी है। और यूसुफ को हुस्न में चूंकि मिठास थी, मिठास औरत की फितरत है, नमकीनी मर्द की फितरत है। यही वजह है हुस्न यूसुफ को देख के औरतों की उंगलियां कटी हैं, हुस्न मोहम्मद को देख के मर्दाने अरब की गर्दनें कटी। तकबीर, रिसालत, साहबा, औलियाए किराम, अदीब अदीब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब नदीम। अब जिसका हुस्न इतना अजमत वाला है, मेरी तरफ देखना, इस हुस्न का इदराक भी कोई नहीं कर सकता, इसको बयान भी कोई नहीं कर सकता, इसको अपने अंदर समोई कोई नहीं सकता। इसलिए इसके तज़किरे तो किए जा सकते हैं। और जो इतना हसीन महबूब हो वो इस काबिल नहीं कि हर जगह फिरता रहे। हीरा खूबसूरत हो तो उसे समो के एक जगह रख देते हैं। कीमती चीज एक ही जगह होती है, हर एक जगह नहीं रखी जाती। जिस महबूब में हुस्न इतना है, अल्लाह ने उसे अपनी जगह पे रखा है। दुनिया को हुक्म दिया है कि हुस्न मोहम्मद तो तुम क्या पचा सकोगे, उसके रोजे को देखकर उसके अनवार भी बर्दाश्त कर सकते हो। काबिल कदर दोस्तों, अगली बात समझो जो समझाना चाहता हूं। अब मैं ये जो बार बार सूरज की तस्वीर दे रहा हूं कि रात गई दिन आया सूरज आया, सूरज से मुशाबिहत कुरान में हुजूर को दी है, लेकिन एक मुशाबिहत में तब्दीली करके सूरज को कहा है सिराजम बहादा और महबूब को कहा है सिराजम मुनीरा। सारे बोलो सिराजम मुनीरा। फर्क समझो, सूरज ये भी है वो भी है। ये जमीन का सूरज, मोहम्मद दीन के सूरज, ये इस जहान के सूरज, वो ईमान के सूरज। ये सुबह तुलू हो शाम को गुरूब हो, वो जिस दिन से तुलू हुआ उसको गुरूब भी लायक होता। और ये बादलों के पर्दे में छुप जाए, ये रात के सन्नाटों में छुप जाए, ये पत्तों की ओर में छुप जाए, ये बादलों के साए में छुप जाए, ये पहाड़ों के ज़ेर साए छुप जाए। और जब वो नबूवत का सूरज तुलू हुआ वो छुपा नहीं, उसने छुपे हुए खजीने कायनात में जाहिर किए हैं। इल्म के खजीने, मार्फत के खजीने, अल्लाह की पहचान के खजीने, कायनात में अल्लाह की रबूबियत के खजीने, अपनी नबूवत के खजीने, कुरान की तिलावत के खजीने, इससे दुनिया को मारा मार किया है। ये सूरज गुरूब हो, अंधेरा छा जाए, मेरे नबी रोजे में आराम करे, तब भी उसकी नबूवत पूरी कायनात को मुनव्वर करती रहती है। दुनिया के सूरज के करीब जाओ गर्मी लगती है, नबूवत के सूरज के करीब आओ ठंडक और नरमी लगती है। दुनिया के सूरज के करीब गोरा भी जाए काला बन जाता है, नबूवत के सूरज के करीब काला जुलैबीब आए, नबी चेहरे को हाथ फेरे चौधरी के चांद से ज्यादा रोशन बन जाता है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान सहाबा, मौलाना अब्दुल करीम साहब नदीम। दुनिया का सूरज समझना खुद तो रोशन है, खुद तो रोशन, सारे बोलो ऊंची बात से है, लेकिन इसकी रोशनी जहां पड़े उस जगह को रोशन करता है। और जब हट जाए तो वो जगह फिर वीरान की जाती है। मोहम्मद नबुव्वत के वो सूरज हैं जो खुद भी रोशन हैं और अपनी रोशनी से सियाह फामू को वो रोशन किया कि जमाने का इमाम बनाया, ताजर को सिद्दीक बनाया, कातिल को आदिल बनाया, दौलतमंद को जिन्नूरैन बनाया, खेलते बच्चे को हैदर करार बनाया, यमनी को अबू हुरैरा बनाया, इब्ने अब्बास को कुरान का मुफस्सिर बनाया, काले बिलाल को मस्जिद नबी का मुअज्जिन बना दिया। ये सूरज की कशिश है। फिर सूरज को कुरान कहता है सिराजन बहाज, बहाज का माना है आग, गर्मी, तप, तपिश।
ایسا سورج جس میں تپش اور گرمی ہے، اور میرے نبی کو کہا سراجم منیرا، ایسا سورج جس میں نور ہی نور ہے۔ سارے بولو یار، جس میں اونچی بات سے، جس میں نورن علی نور ہے، کہہ دو نا نورن۔ آج آپ کو نور ہی سمجھا دیتا ہوں، حضور کا نور کیا ہے۔ ختم نبوت، یہ سورج جو سراج وہاد ہے، آگ اور شعلے بھڑکاتا ہے، اور آگ کی نسبت جہنم سے ہے۔ میرا نبی سراج منیر ہے اور نور کی نسبت جنت سے ہے۔ یہ سورج میرے نبی کے ساتھ مقابلہ کیا کرے گا؟ میرے نبی کے قدموں تلے جنت ہے، یہ جہنم کی آگ کے شعلوں کی نشانی۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، اس لیے حضور کو کہا سراج منیر، نبوت کے نور والے سورج، تپش والے نہیں، نور والے سورج کے نور سے تسکین ملتی ہے، تپش سے پریشانی ہوتی ہے۔ ایک بات اور سمجھو بڑی عجیب، نور اور بشر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں۔ سارے بولو، ایک دوسرے کی ہیں؟ بولو، ہے یا نہیں؟ نہیں ہے بھائی، ایک دوسرے کی ضد، یہ کہہ دو ایک دوسرے کی ضد۔ ضد اس کو کہتے ہیں جو دو چیزیں اکٹھی نہ ہو سکے، اس کو ضد کہتے ہیں۔ اندھیرا اور روشنی یہ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ بولو، سردی اور گرمی ایک دوسرے کی کیا ہے؟ اونچی آواز سے۔ انسان کی ضد جن ہے، قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا ہے من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں کو اکٹھا کیا ہے۔ انسان کی ضد کیا ہے؟ سارے بولو، من الجنت والناس وما خلقت الجن والانس، انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ انسان اور جن یہ ضد ہے۔ نور کی ضد بشر بھی نہیں، نور کی ضد جن بھی نہیں۔ سمجھنا پڑے لکھے دوستو، تمہیں پاگل ملاؤں نے تمہارا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ نور کی ضد ہے ظلمت، من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی کی طرف، روشنی سے اندھیرے کی طرف۔ نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرا، تو نور اور ظلمت ضد ہیں، انسان اور جن ضد ہیں۔ اب دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوگی کہ بشر بھی ہو جن بھی ہو اکٹھے ہو جائیں۔ ایک ہی آدمی کو آپ بشر بھی کہیں، اس کو آپ جن بھی کہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے دو چیزیں جمع نہیں ہوگی، یہ روشنی بھی ہو، اس روشنی کو آپ اندھیرا بھی کہیں، یہ دو میں سے ایک ہوگی، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگی، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو آپس میں ضد نہ ہو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، ان کا جمع ہونا ناممکن نہیں۔ اب آپ غور سے ذرا سمجھیں، اگر کسی بھی دنیا کے پاگل سے پوچھ لیں، کسی عقل مند سے پوچھ لیں، کسی علامہ فہامے سے پوچھ لیں، کسی بڑے بڑے سے بڑے سکالر سے پوچھ لیں، پیغمبر انسان تھے یا جن تھے، یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، تم فیصلہ کر کے بتاؤ۔ عقل مند آدمی کیا کہے گا، شریف آدمی کیا کہے گا، کلمہ پڑھنے والا کیا کہے گا، ہر مسلمان کہے گا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اگر وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے، وہ کہے گا میرے نبی جن نہیں، محمد انسان ہے۔ کیا کہے گا؟ سارے بولو کیا کہے گا؟ حضور کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ اب تقابل میں ہو، نور کی ضد ہے ظلمت، روشنی کی ضد اندھیرا۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اسلام روشنی ہے، کفر اندھیرا ہے، سنت روشنی ہے، بدعت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ اب دنیا کے کسی آدمی سے پوچھے، دیوبندی سے پوچھو، بریلوی سے پوچھو، اور حدیث سے پوچھو، کسی مکتب فکر کے آدمی سے پوچھو، حضور نور ہے یا ظلمت، روشنی ہے یا اندھیرا، تو کیا کہو گے؟ اونچی آواز سے عربی کا لفظ کہو، کیا کہو گے؟ کیا ہے؟ نور ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ اور سارے بولو کیا ہے؟ نور ہے۔ اب بات سمجھو، انسان بھی ہیں اور کہہ دو یار، انسان بھی ہیں اور بھائی نسل میں انسان ہیں اور نبوت کی اصل میں نور ہے۔ اب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو
तारुफ नहीं, जिद नहीं। ये आपकी आंखों में क्या है? बोलो किससे देखते हो? आपके सीने में ईमान क्या है? ये हाफिज बच्चा बैठा है, इसके सीने में कुरान क्या है? ये आलम बैठा है, इसके सीने में हदीस क्या है? जोर से बोलो। मियां मसूद अहमद वली आदमी है, उसका चेहरा देखकर लोग क्या कहते हैं? इसके चेहरे में क्या है? भाई ये नूर भी हो और इंसान भी हो, दो चीजें इकट्ठी हो सकती हैं। ये तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा है कि नबी या इंसान है या बस नूर है? इन दोनों को जमा नहीं हो सकता। मेरा नबी इंसान ऐसा है खलील मुकाबला नहीं कर सकता, नूर ऐसा है कि जिब्रील मुकाबला नहीं कर सकता। अब मैं बात को समेटता हूं भाई। तकबीर इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा शान साहबा। आका की आमद से पहले ऐलान नबुव्वत से कबल जो वाक़यात हुए उनको क्या कहते हैं? इरहास नबुव्वत। सारे बोलो। एक वाक़या इरहास नबुव्वत का कुरान ने बयान किया है, जो मैंने अभी सूरत आपके सामने पढ़ी। वक्त बहुत सारी बातों में उधर चला गया, वरना मैं इस पर तकरीर करता। असल मेरा मौजू ये था, अब ये उधार हो गई। इस वाक़ये में कुरान मजीद ने किस्सा नकल किया है। आका की विरादत से 50 दिन पहले, कितने दिन? 50 दिन पहले एक बादशाह था अबरा। वो चाहता था कि लोग मेरा कहा माने, मेरी हुकूमत और सल्तनत को कबूल करें। उसने एक दस्ती काबा बनाया हुआ था, लोग उसका तवाफ करने के लिए आए। तफसील का वक्त नहीं, हकीकत हकीकत होती है, नकल नकल होती है। अल्लाह हमें असल की तौफीक दे। एक तबलीगी जमात असल है, एक नकल है। एक इज्तिमा असल होता है, एक नकल होता है। एक अहले सुन्नत असल होते हैं, एक नकल होते हैं। लोग असल की तरफ जाते हैं, नकलों को कबूल नहीं करते। एक काबा असली था, एक उसने नकली बनाया। अब दुनिया की फितरत है असल की तरफ जाना, नकल को छोड़ना। दुनिया ने नकल छोड़ दी। मेरी तरफ से देखना, मैं बात को समझ रहा हूं। हत्ता के उसके काबे में जाकर उन्होंने पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया। उसको गुस्सा आया, वो हाथियों का लश्कर लेकर काबे को गिराने के लिए आया। तफसील किस्सा बयान करना मकसूद नहीं। काबे के करीब आया तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा ने कहा, उसने ऊंट उनके पकड़ लिए। उसने कहा मेरे ऊंट मुझे दे दो, तू जान तेरे ऊंट जान, अल्लाह जाने, अल्लाह का घर काबा जाने, तू जाने, मेरा कोई वास्ता नहीं। हैरान हो के कहता है ये अजीब लोग हैं, इस काबे के सदके इनको रोजी मिलती है, मैं काबा गिराने आया हूं, इनका हाल ये है। उसने कहा ये पागल लोग हैं, ऊंट इनके दे दो और चलो काबे पे हमला करने के लिए। हाजी हजरात जो हज करके हैं वो जानते हैं, अरफात से मुज़दलिफा मिना की तरफ वापस आओ, दरमियान में जगह आती है, उसका नाम है वादी मुहस्सर। क्या नाम है उसका? इस वादी के करीब जब वो हाथियों का लश्कर लेकर आया, उसके करीब पहुंचा, अल्लाह ने काबे की हिफाजत का फैसला किया। छोटे छोटे परिंदे अपनी चोंच में, अपने परों में एक एक छोटी सी कंकरियां लेके आए और ऊपर से वो कंकरी नीचे ऐसे फेंकते थे जिस तरीके से कोई मिसाइल, रॉकेट और एटम बम फेंका जा रहा हो, शाहीन और घोड़ी दागा जा रहा हो। जो लगती जिसे कंकरी दूसरी तरफ से पार निकल जाती, उसका सत्यानाश हो जाता। पूरे का पूरा लश्कर बर्बाद हुआ, बादशाह तबाह हो गया। उस पूरे लश्कर में बादशाह का हाथी बचा, जिसमें बादशाह सवार था। वो हाथी क्यों बचा? इसलिए कि उसका नाम था महमूद। नहीं समझो यार, उसका नाम क्या था हाथी का? ये लोग जानवरों के नाम रखते हैं ना, कुत्तों के नाम, बिल्लों के नाम, बकरियों के नाम, तो ये अरब में भी ऐसे लोग नाम रखते थे। उसने उस हाथी का नाम महमूद रखा हुआ था। ये काबे की तरफ उसको हाँकता था तो हाथी फिर पीछे चला जाता, फिर मारता, फिर पीछे चला जाता। आखिर गुस्से में आकर उसने कहा नहीं चलता तो ना चल, मैं जा रहा हूं। वो नीचे उतर के खुद आगे चला, उसे कंकरी लगी, वो तो बर्बाद हो गया। हाथी पूरे लश्कर में बचा। क्यों बचा? इसलिए कि नाम था महमूद, और ये महमूद नाम है मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आका के नाम की निस्बत से हाथी बचा। हम तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, इसलिए आज ये चेहरे बचे हुए हैं तो रसूलुल्लाह के नाम से बचे। इसलिए एक मसला सुनो, हुजूर ने फरमाया लोगों, जिस घर में मेरे नाम का बच्चा हो उसका नाम मोहम्मद अहमद हो, मोहम्मद हामिद हो, महमूद हो, मोहम्मद हो। अगर 3 बच्चे अल्लाह तुम्हें दे और किसी एक का नाम भी मेरे नाम पर तुमने नहीं रखा तो तुमने मेरे साथ जुल्म किया। दूसरी रिवायत में आता है जिस घर में मेरे नाम का बच्चा हो
اور اگر تم لوگ وہ بچہ گھر میں آئے محفل میں آئے اس کی وجہ سے جگہ چھوڑ دو اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا لو تو میں تمہاری قیامت کے دن سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا کہ تم نے میرے نام کی عزت کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا این المحمدیون، کہاں ہے وہ لوگ جن کے نام محمد تھے. ایک مجمع اٹھے گا ایک طرف چلا جائے گا. اللہ کہیں گے فرشتوں ان سب لوگوں کے نام اعمال لپیٹو، کسی کا نام اعمال نہ کھولو، سب کو جنت میں بھیجو. اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ نام کسی کا محمد ہو اور اس کا نام اعمال کھولا جائے اور اس کے نام اعمال میں کوئی سیاہی ہو اور کفر کے سامنے ظاہر ہو کہ نبی کے نام کی نسبت والا ایسا ہے. میں اپنے محبوب کے نام کی لاج سے سب کی مغفرت کا فیصلہ کروں. اس لیے اپنے گھروں میں اس نام کی لاج رکھا کرو اور یہ نام رکھا کرو. قابل قدر دوستو، یہاں ایک مسئلہ جو آپ کو سمجھانا ہے جس پر میں تقریر ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جس وقت یہ واقعہ ہوا حضور کی ولادت سے کتنے دن پہلے، سارے بولو. سوال یہ تھا کہ کعبے میں اس وقت رکھے تھے 360 بت. سارے بولو کتنے بت؟ 60 بت. ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا وہ چلے گئے، اسماعیل نے بنایا تھا وہ چلے گئے. حضور نے اس کو آباد کرنا تھا، آقا ابھی آئے نہیں، قرآن ابھی آیا نہیں، پڑھنے والے شاگرد ابھی آئے نہیں. کعبے میں بت رکھے تھے، ان پتھروں کی حفاظت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ توجہ کرو، میرا سوال سمجھو. میں اپنی بات میں وہی کہہ رہا ہوں، تقریر سننے نہ آیا کرو، سمجھنے آیا کرو. اس مکان کمرے کی حفاظت کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ سے مسئلہ سمجھنا. علماء نے لکھا ہے اللہ نے بیت اللہ کی عمارت کی حفاظت اس لیے کی تھی کہ خلیل نے جب اس کی بنیاد رکھی تھی اس وقت یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اس کو علم کا مرکز بنانا. وہ مدرسہ تھا جس کو خلیل آباد کر رہے تھے. مدرس محمد الرسول اللہ مانگا، نصاب تعلیم قرآن مانگا، پڑھنے والے شاگرد صحابہ مانگے. جب ایسا بہترین مرکز آمنہ کے در یتیم نے اللہ سے مانگا تھا تو ابھی حضور اماں کی پیٹ میں چونکہ آ گئے تھے، استاد آ چکا تھا، شاگرد تیار ہو رہے تھے، کتاب آسمان سے اترنے والی تھی. اس سیرت و صورت پہ عمل کی توفیق دیں. یہ میری تذکرہ محبوب کبریا حضور کی سیرت پہ لکھی ہوئی کتاب، اس میں میری 10 تقریریں ہیں اور اس میں میں نے ایک حصہ. جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور ضلع رنگیا خان میں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے. اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.